Hello. Now we are going to study of English lesson 10 class his first flight, page number 31. His first flight. This story is about a small bird, seagull, and this story was written by Lime O. Flaherty. हम जो है एक ऐसी कहानी, ऐसा सबक पढ़ने जा रहे हैं जो एक छोटे परिंदे के बारे में है, सीगल, जो समंदर के किनारे ये परिंदा रहता है, मछली पकड़ता है, जिसको हम बगला कहते हैं, वाइट कलर का. In English we call seagull. And the title of this lesson, his first flight. His means उसकी पहली उड़ान, flight, 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 उड़ान, first. यानी पहली मर्तबा कैसे उड़ता है वो यहाँ इस सबक में बताया गया है. I am going to read. Please listen and keep your textbook. The young seagull was alone on his ledge. एक छोटा सा परिंदा, सीगल, बगला, अकेला, alone, lonely, तन्हा, ledge, LEDG, ledge, एक चट्टान का किनारा, क्लिफ, या चट्टान की शिगाफ या सुराख में उसका घर, अकेला है, तना है, लेज पर, जिसको हम चट्टान कहते हैं. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके और दो भाई, brothers and sister, had already flown, पहले से ही उड़ चुके हैं. उसके भाई, बहन, मम्मी, पापा सब उड़ रहे हैं, बस वो अकेला, he was alone in the ledge, in the cliff. Flown, fly का past perfect, flown, fly, flew, flown, वर्ब है, देखिए, fly, flew, flown, और flight उससे बना है. So he had been afraid to fly with them, but here the little seagull was afraid to fly. लेकिन छोटा सा ये सीगल डर रहा है, afraid है उड़ने के लिए, जैसे उसका भाई बहन उड़ रहे हैं उसके मम्मी पापा के साथ. Somehow, when he had taken a little run toward the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. No, he tried to fly. वो कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उड़ने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की, थोड़ा आगे बढ़ने की, little forward, the brink of the ledge, किनारा, वो चट्टान के किनारे के पास पहुंचा, उड़ने की कोशिश कर रहा, उसके भाई बहन की तरह. Attempt to flap, try, flap, उड़ना, FLAP. His wings, he became afraid. उसके जो पर है, wings है, wings means the part of the body. तो परिंदे के जिस्म को जो पूरा पर लगे हुए रहते हैं उसको हम कहते हैं wings. और फीदर मीन जो सॉफ्ट कलर के जो पर होते हैं अलग अलग, उसको फीदर कहते हैं. गर्ज ये कि विंग्स इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड विंग्स जो है अलग अलग पर निकलते हैं उसको फीदर कहते हैं, and wings is the part of the body.
So the great expanse of the sea straight down beneath, and such a long way down, miles down. He looked, a great expanse of sea. Expanse व sea, फैला हुआ समंदर ऐसा फैले हुआ है. sea straight down beneath, and such long way down, miles, कई मील तक फैले हुआ. और शायद ये चीज को डरा रही है इस समंदर, बड़े समंदर की वजह से. दैट्स वाई ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, though he attempted to fly, उन्हें कोशिश किया उड़ने के लिए. but because of the expanse, the sea, समंदर, he felt certain that his wings would never support him, so he bent his head, ran away back to a little hole under the ledge where he slept at night. उसने सोचा, his wings could not support, पहले ही सोच लिया उसने कि उसके पर जो है, विंग्स है, उड़ने के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते. पर में इतनी ताकत नहीं है ताकि उड़ सके. देखो, उन्हें सोच लिया कि आई कान डू. और जो शख्स नहीं ये सोचता कि मैं नहीं कर सकता, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता. अगर वो सोचता है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, तो एक ताकत, एक एनर्जी उसमें पैदा होती है. हालांकि एनर्जी ताकत तो रहती है, लेकिन जब नहीं बोलता है तो उसकी एनर्जी, ताकत जो है दब जाती है. हियर a bird said, I can't fly, because his wings could not support. उसके जो पर है उसको सपोर्ट नहीं कर सकते. That's why he bent down his head. तो अपने सर को नीचे झुका दिया और अपने होल, उस जो घोंसला है, क्लीफ के पास बैठ गया. Even when each of his brother and his sister, whose wings were far shorter than his own, ran to bring, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. हालांकि even though his brother and sister's wings are shorter, उसके भाई और बहन के विंग्स भी शॉर्टर थे, छोटे थे, कंपैरेटिवली शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, थोड़े थे, फिर भी उड़ रहे थे. दे आर फ्लाइंग. बट हियर seagull couldn't fly because he thought that his wings could not support to fly. क्योंकि वो सोचता था कि उसके पर उसकी मदद नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, कमज़ोर है, इसलिए उड़ने. हालांकि उसके भाई बहन के पर छोटे हैं, विंग्स छोटे हैं, बट दे आर फ्लाइंग, वो उड़ रहे हैं. Even when each of his brother and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to bring, flap their wings and flew away, he failed to muster courage. Muster courage, हिम्मत जुटाना. To take the plunge which appeared to him so desperate, जान तोड़ की कोशिश करना, मायूस हो जाना. His father and mother had came around calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stray on his ledge unless he flew away. साथ ही साथ उसके मम्मी पापा, फादर एंड मदर वेर फ्लाइंग, वो भी उड़ रहे हैं और उसे कह रहे हैं उड़, उसके भाई बहन की तरह उड़. दे आर थ्रेटनिंग, उसको धमकी दे रहे हैं, उड़. श्रीली, आवाज कर रहे हैं, क्राई. अनब्रेडिंग, डांट रहे हैं, स्कॉल्डिंग कर रहे हैं कि तू उड़. बट सीगल couldn't fly, उड़ नहीं सका. Shrilly upbraiding him, threatening to let stone ledge unless,
और उसको धमकी दे रहे हैं कि तू भूखा रहेगा, स्टार्व, STARV, हंग्री, जब तक तू उड़ेगा नहीं। अगर उड़ता है वो समंदर की जो मछलियां हैं वो पकड़ेंगे और उसको खाएंगा, अगर वो उड़ेगा नहीं तो वो भूखा रहेगा। मीन्स दे आर थ्रेटनिंग, इफ ही doesn't fly he would starve, STARVE, भूखा, फाका। But for the life of him could not move, लेकिन वो जरा मुंह नहीं कर रहा, हरकत नहीं कर रहा, बैठे हुआ है क्लिफ के पास, लेज के पास। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all the day long, he had watched his parents flying about with brother and sister, perfecting them the art of flight, touching them to how to skim in the waves and how to dive the fish. That was 24 hours ago. 24 घंटे पहले, hours, घंटे पहले। Since then nobody had come near him. जब से कोई उसके पास नहीं आया, यानी 24 घंटे से उसके मम्मी पापा भाई बहन उससे अलग है। वो 24 घंटे से बैठा है क्लिफ के पास, चट्टान के पास, कोई उसके पास नहीं आया। The day before, all the long he had watched his parents, और वो 24 घंटे से देख रहा है। His parents were flying, his brothers and sisters were flying, मम्मी पापा उड़ रहे हैं समंदर पर, भाई बहन उड़ रहे हैं और वो बैठा है। They are perfecting the art of flight. They are perfect. Means his brothers and sisters are perfect to art of flight. जो कला है उड़ने की वो परफेक्ट हो गए हैं और बहुत उड़ रहे हैं उसके भाई बहन। बट हियर वो उड़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं उड़ नहीं सकता। Touching them how to skim the waves and how to dive the fish. उसके भाई बहन स्कीम कर रहे हैं, समंदर के पानी को छू के उड़ रहे हैं, डाइव कर रहे हैं, जंप मार रहे हैं समंदर में, टेक द फिश, और मछली पकड़ रहे हैं। He had in fact seen the older brother catch his first herring and devour it. वो देख रहा है उसका जो बड़ा भाई है ओल्डर, एक मछली को पकड़ रहा है, हैरिंग, HERRING, एक किस्म की मछली, एंड डिवोर ईट, पकड़ रहा है, खा जा रहा है। स्टैंडिंग ऑन रॉक, कहाँ है? रॉक के पास। While his parents circle around raising a broad cackle, एक बड़ा भाई उसका मछली को पकड़ता है, खाता है, और उसके मम्मी पापा उसके पास उड़ रहे हैं, सर्कलिंग, फ्लाइंग, सर्कलिंग, एंड दे आर प्राउड, फख्र कर रहे हैं कि मेरा एक बेटे ने मछली पकड़ा और खा रहा है। मीन्स ही बिकेम परफेक्ट इन आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कैचिंग द फिश एंड ड्योरिंग। मम्मी पापा को बड़ा फ़ख्र लग रहा है कि एक बेटा उसका ओल्डर मछली पकड़ा, खा रहा है और उसको फ़ख्र कर रहा है, और माँ बाप फ़ख्र कर रहे हैं, प्राउड कर रहे हैं। और कैकल, प्राउड कैकल, आवाज़ करना। And all the morning the whole family had walked about the big plateau, meted down opposite cliff, taunting him for cowardice. और सुबह पूरे फैमिली एक प्लेटो, एक जगह सतह मुर्तफ़ा स्ट्रेट जगह पर बैठे हैं, मम्मी पापा, दो भाई और उसकी बहन, जबकि ये सीगल है एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन पर बैठा है, क्लिफ पर, लेज पर, और ये सब बैठे हैं और उसको टाउन कर रहे हैं। His father, his mother, taunting. What is taunting? Cowardice. कि बुज़दिल है। Who is a coward here?
a young seagull. Why? Because he could not fly. वो उड़ नहीं सका. That's why his father and mother say, taunted him to cowardice. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that sways to south. अब क्या हो रहा देखिए. The sun was ascending the sky, ascending and descending, ascending order and descending. Ascending सूरज का निकलना, sunrise, and descending sunset, सूरज निकल रहा है. Blazing on his ledge, और गर्म ब्लेस शुआएं लेज पर, वो चट्टान पर जो सीगल है, जो छोटा सा बच्चा है वहाँ है, उस पर जो है रोशनी सूरज अपनी किरणें उस पर डाल रहा है. दैट फेस द साउथ. कहाँ है वो? साउथ की तरफ. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He was hungry. A little seagull was hungry because of the heat, because of the sun blazing, and because of that he hadn't eaten since previous nightfall. वो उसको भूख लगी है. एक तो सूरज की तपिश, और फिर कल से खाया नहीं कुछ उसने, क्योंकि उड़ नहीं पा रहा. Seeing the previous nightfall, he stepped slowly out of the brink of the lake, and standing one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye, the other, and pretending falling asleep. वो थोड़ा आगे बढ़ा, ब्रिंक तक आया, किनारे तक, और एक पैर से खड़ा हुआ, और एक पैर उसने छुपाया अपने विंग्स में. एक पैर से खड़ा, आंखें बंद की, स्लीप, प्रिटेंडिंग, और ऐसा बता रहा कि वो सो रहा है. एक्चुअली ही वॉज नॉट स्लीपिंग बिकॉज ही वॉज हंगर. भूख थी उसको, लेकिन बता रहा है. ही वॉज प्रिटेंडिंग टू स्लीप. ही वॉज स्टैंडिंग वन लेग, and one leg hidden under his wings. He closed one eye, then other pretended to be falling asleep. Still they took no notice to him. वो बताना चाह रहा है कि मम्मी पापा भाई बहन को वो सो रहा है, लेकिन उनकी पूरी फैमिली उसको नोटिस नहीं कर पा रहे. मीन्स दे इग्नोर, दे डिड नॉट नोटिस हिम. He saw his two brother and his sister laying on the plateau, dozing with the head sunk into their neck. क्या देखा उसे? Saw, past tense, see का saw. Two brother and sister laying on the plateau. उसके भाई बहन plateau, सत्य मुर्तफी की जगह पर, सपाट जगह पर बैठे हुए हैं, डोजिंग कर रहे हैं, ऊँग रहे हैं. Their head sunk in the neck. उनका सर जो है इंटू नेक, गर्दन की तरफ है, नीचे मुंडी डाल के वो ऊँग रहे हैं. अक्सर परिंदे जो करते हैं. नेक मीन्स गर्दन. His father was preening the feather of his white back. और पापा क्या कर रहे हैं? पर को साफ कर रहे हैं, फीदर को जो सफेद पर आते. प्रीनिंग, क्लीनिंग विथ बीक, चोंच से, जो अक्सर परिंदे जो है चोंच से अपने पर को साफ करते हैं. All his mother was looking at him. सिर्फ माँ ही छोटे सीगल को देख रही है. माँ की ममता, वो देख रही है उसका बच्चा दूर है, भूखा है, उड़ नहीं पा रहा. The mother was watching him. His two brothers, sister were dozing. His father was preening the feather, and his mother was watching two seagulls. She was standing on a little high hump on the plateau for a white breeze thrust forward. माँ कहाँ खड़ी है? हाई हम्प,
एक ज़मीन के टुकड़ा समंदर में ज़मीन के टुकड़े पर खड़ी है और आगे बढ़ रही है. Now and again he tore a piece fish that lay at the feet. फिर उसने जो मछली थी उसके पैरों के पास उसने निकाली and tore the pieces. मछली को टुकड़े किया. Piece of fish that scraped each side beak. और अपने बीक को अपने चोंच को घसा, स्क्रैप किया, रब किया. And beak of the rock, the sight of food maddened him. जैसे ही सीगल ने देखा माँ के पास मछली है तो ये पागल हो गया. मैडन. Why? Because he was hungry. क्योंकि भूखा था वो. माँ के पास मछली थी. The mother tore the pieces. Tear का past tense tore the pieces. Piece में टुकड़ा. Pieces of fish. The sight of food maddened him. Sight, SIGHT, नज़ारा, मंजर, सीन, मैड कर दिया उसको, पागल कर दिया. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. उन्हें देखा माँ जो है बीक को वेट कर रही है, तेज कर रही है, शार्पन, जब छुरी को तेज करते हैं. और उसके पास क्या है? मछली का टुकड़ा. गा 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 he cried begging her to bring some food. और चिल्लाया. जैसे ही मच्छी को देखा, फिश को देखा, चिल्लाया. कोला he screamed and screamed back derisively. चिल्लाया उसने. derisively, mocking, एक बेवकूफ़ी अंदाज से. She screamed. किसने चिल्लाया? माँ ने चिल्लाया. But he kept calling plaintively. और लेकिन वो आवाज़ कर रहा है. माँ के पास मछली है और माँ से कह रहा है कि मुझे ला, टू ब्रिंग. लेकिन माँ उसको जो है एक मॉकिंग कर रही है, चिढ़ा रही है. और ये जो बच्चा है, he kept calling plaintively, और वो आवाज़ कर रहा है तकलीफ में, गम में, कि माँ वो मछली मेरे पास ला, मैं खाऊं. plaintively, sorrow. And after a minute she uttered joyful scream. A minute, एक मिनट, minute and minute, spelling एक. मिनट मीन्स अब 1 मिनट 2 मिनट, एंड माइनटली, गौर से देखना, ऑब्जर्व, तलफ़ुज़ अलग है. मिनट, माइनट, माइनटली. हियर मिनट मीन्स 1 मिनट. सो ही अटर जॉयफुल स्क्रीम. और 1 मिनट के लिए ही अटर जॉयफुल, खुश हो गया, चिल्लाया खुशी से. क्यों? देखिए. His mother had picked up fish and was flying across him. क्यों? माँ ने मछली को उठाया और उसके पास आने लगी. और वो बच्चा सोच रहा कि माँ अब फिश लेके आ रही है, अब लेके आ रही है और उसे वो खाएंगा. See, here we stop the first and second paragraph. If you look the question in the page number 31, what did the young seagull feel? Young seagull क्या महसूस करता है, कैसा था? You have to write the question in the first paragraph. And another question, last question, page number 31. Why did young seagull feel hot? Young seagull गर्म महसूस क्यों कर रहा? You know that he was hungry. He had not eaten since nightfall. And the first, what did young seagull feel? वो seagull जब था
क्लिफ पर, ईश पर कैसा था वो? लोनली, अफ्रेड, डरा हुआ था। आपको लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 32. What were the young seagull parents doing? What were the young parents doing? His father was preening feather. His brother and sister were dozing, and mother was looking at him. पप्पा जो है पर को साफ कर रहे हैं, भाई बहन सो रहे हैं, ऊँग रहे हैं, और माँ उसको देख रही है. So you have to write this question, and the remaining part we will see in the next video. Thank you.